ધ ઓજીસ ઓફ અમદાવાદ હિપહોપ કલ્ચરની જેમણે આખી પરિભાષા બદલી નાખી છે એવા ઓજીસ છે. લેટ્સ વેલકમ સ્યાહી. Thank you so much. Thank you so much. અને આપણે અમદાવાદનો ખાનુડો. લેટ્સ વેલકમ ધનજી. 50 का ग्राउंड प्ले किया है, 500 का प्ले किया है, 5000 का किया है, 5000 के ऊपर का भी किया है. तो हमने सब देख लिया है, मतलब सारी ऑडियंस देख ली है. 2021 થી ભાઈ मैंने एक दृढ़ निश्चय बनाई લીધો કે હવે આર્યા પાર વાળો. मस्ती तो नहीं है भाई, मतलब लोगों ने हमारे सक्सेस देख के मतलब इसको फैंटेसाइज किया, लेकिन उन्होंने लॉस देख के उसको सीरियसली नहीं लिया. आई हैव नेवर हर्ड एनीवन लाइक धनजी इन टर्म्स ऑफ हिज स्टाइल. मतलब एक शहर में रह के खुद एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ. મારો પાર્ટનર ઇન ક્રાઇમ છે. એટલે અમદાવાદની વાત આવે એટલે હિપહોપની વાત આવે એટલે અમે એ જાળવીને રાખ્યું છે. હાય ગાઈઝ, વેલકમ ટુ ધ યેટ અનધર એપિસોડ ઓફ અવર પોડ. મારે આજે સ્ટુડિયોમાં જે ગેસ્ટ આવ્યા છે એમના જેવું હું બોલવાનો ટ્રાય કરું છું, પણ મને કંકોડો કશું આવડતું નથી, એટલે જ મેં આજે એમને અહીંયા બોલાયા છે. આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં બે ખાસ મહેમાનો છે. ધ ઓજીસ ઓફ અમદાવાદ હિપહોપ કલ્ચરની જેમણે આખી પરિભાષા બદલી નાખી છે એવા ઓજીસ છે. સો સૌથી પહેલા તો MTV હસલ 4 ના ધી ઓજી હસલર. લેટ્સ વેલકમ સ્યાહી. Thank you so much. Thank you so much. અને આપણે અમદાવાદનો ખાનુડો. લેટ્સ વેલકમ ધનજી. બંને જણાએ 100 કરતા વધારે શોઝ કર્યા છે. અમદાવાદથી શરૂઆત થઈ હતી ને અક્રોસ ઇન્ડિયા એ લોકો શોઝ કરી રહ્યા છે, ધમાધમ કરી રહ્યા છે. આજે ખબર નહીં એમને કેમનો સમય મળ્યો છે, પણ આપણા સૌભાગ્ય છે કે આપણા સ્ટુડિયોમાં આજે બંને જણા આવ્યા છે. વેલકમ ટુ ધી હોટ પોડ ગાઈસ. Thank you so much. मतलब सो के उठ के आ गए. સૌથી પહેલા તો નામ વિશે હું પૂછીશ કે હા સાચા નામ છે સ્યાહી એન્ડ ધનજી, એની પાછળની સ્ટોરી શું છે? વી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ યુ ધનજી. મારા મામાએ પાડ્યું હતું ધનજી? ધનજી કુમાર. અરે વાહ. યસ સર. એટલે એમને ખબર હતી કે ફ્યુચરમાં ધન બધું બહુ આવવાનું છે, એટલે ધનજી કુમાર એમનું પાડ્યું. પોતાનું નામ હતું ધનજી. અચ્છા, એમનું પોતાનું નામ હતું. અરે અને એ વાહ. મારા પપ્પાએ પાડ્યું હતું. ઓકે. અને એમનું સાચું નામ નતું. અચ્છા, સાચું નામ શું હતું? પાડ્યું હતું એનું. એમનું સાચું નામ ધવલ. તો ધવલ પરથી ધનજી પપ્પાએ પાડ્યું ને એ નામ એમણે તમારું પાડ્યું. યસ. અરે વાહ. યસ સર. असली नाम पूछा है कि ना पूछा है हमारे? જી બિલકુલ હું કહીશ. एंड स्याही के पीछे की क्या कहानी है? भाई मैं और नील सीखे हम लोग एक रेडियो स्टेशन में स्नीक इन करके गाने रिकॉर्ड करते थे. एक टाइम बाद पकड़े भी गए थे. अच्छा. तो वहाँ पे जो न मैंने मारू रेडियो स्टेशन है तू? હા. स्टेशन हेड ने फिर एक टाइम में पकड़ भी लिया था, तो बोला कि अब यही कर रहा है तो हमको थोड़े प्रमोशनल हमको भी एपिसोड्स के लिए दे दे. तो मैंने साइड बाय साइड अपना भी काम निकाल रहा था वहाँ से. तो वहाँ पे जो फर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड किया था वो दैट वाज फॉर अ कंपटीशन. उस गाने का नाम स्याही था. वो और वो कंपटीशन में वो जो अनाउंस करे थे विनर्स, उसमें उसने मेरे नाम की जगह स्याही बोल दिया. तो मिस्टेकनली मतलब आई फाउंड इट और मेरे को ऐसा लगा कि यही रखना चाहिए, तब से चेंज भी नहीं हुआ है. तो वहाँ से आया ये नाम ऐसा. क्या बात है. तो स्याही मेरे पहले गाने का नाम था. સુપર. Yeah. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં પછી તમારે અમને રેડિયો સ્ટેશનને અમુક પૈસા હવે આપવા પડશે આગળ કમાવા તો. એ ગાયન પરથી તો કેટલા કમાયા. કહી દો નહીં तो લઈએ चैनल किसी चैनल भी किसी के और पे ये वो करके, Instagram पर गीत पर बदले में हमने भी दिया था गली बॉय प्रमोशनल था मतलब. बट उस गाने में तुम सब कुछ कमाया, ऐसा ही बोल सकते हैं. स्याही नाम तय पड़ू એટલે. हाँ मतलब हाँ द फर्स्ट मेरा रैप का पहला लाइन का पहला वर्ड ही स्याही था. Wow. ऐसा उस रैप का दैट वाज माय प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डेड सॉन्ग, फर्स्ट एवर ऐसा. तो वहां से थिंग्स चेंज. तो एक अनऑफिशियल शुरुआत हुई थी और आज ऑफिशियली आप सामने बैठे हैं और Yes. मैं भी रेडियो मिर्ची से, और आज ये खुलासा हो रहा है कि Yes. शुरुआत वहां से हुई थी. यस यस यस. પાછળ ટાંકી હતી ને અમે લોકો બેસતા હતા. સીડી થી જે હતી. अच्छा. હા. અને કોઈને હજુ સુધી ખબર નથી પડી. બોલો. નહીં વાહ ભાઈ વાહ. આ ફોડીને રાખ્યા બધાને. हाँ, हमने वेट फॉर इट भी आधा उधर ही निकाला था. ઉદય. हाँ तो मतलब दो ત્યારે गाने. હું એકવાર આવેલો પણ આ ત્યારે ખાસું હતું. हाँ સો તમારી જર્ની જે છે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, અને મને તો ખ્યાલ જ છે તમારી જર્ની જ્યારથી શરૂ થઈ છે, કેમ કે આપણે ત્રણેય કોમન ફ્રેન્ડ જે છે जिसका जिक्र हो रहा है नील सीके, અમારા ત્રણેય ખાસ ફ્રેન્ડ છે પારિજાત. સો એમની આખી સ્ટોરી મને ખબર છે, પણ છતાં પણ આજે ઓડપોડમાં આઈ વુડ લવ કે તમે તમારી સ્ટોરી જે છે શેર કરો. વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ સ્યાહી. So he used to live in my society. Like I used to live in his society. Neil. Sorry. Yes. So Neil को मैंने एक दिन text किया because Neil was doing music on his own. So I realized he's already working in the studio. He already knows how music is created. तो मैंने इसको Instagram पे शायद उस दिन मैसेज किया था 2017. I told him that I am also writing raps and it's been like a year कि मैं खुद से मेहनत कर रहा हूँ ये वो करके. So if you're interested, let's work on something. And that's how we started making things. That's why I met him at the studio time only, जब ये
प्रोग्राम हेड था या जो लाइक यहाँ पे आरजे था यहाँ पे, that's the time I met him and we started making songs together. Then he opened his own studio at home और फिर वहाँ से गाने बनने शुरू हुए 2017 से फिर अब तक साथ में. It's been a long journey and 2019 2018 I met him. हाँ तेरे भाई का तो बोल अनिरुद्ध का. हाँ 2015 में. अच्छा मेरे को नहीं प्रॉब्लम, मेरे को लगा यहाँ से स्टोरी. 15 में मैं रैप कर रहा था तो मेरे भाई के साथ गिटार पे वी यूज्ड टू डू ऐसे बॉलीवुड कवर्स. तो दैट वाज मेरा पहली बार ऐसे जब मैं ऐसे 16 लाइन का रैप कर दूंगा बीच में एंड वी वुड अपलोड इट ऐसे. सो इट स्टार्टेड विद अ बैंड ऐसे स्कूल बॉय बैंड ऐसे वेयर आई यूज्ड टू रैप एंड दैट वाज माय ओनली थिंग. आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स आल्सो बट उतना प्रो नहीं हो पाया ड्रम्स में. रैप मेरा 15 की एज से आई लाइक दैट वाज द फर्स्ट पीस आई एवर रोट एट द एज ऑफ 15 एंड देन 19 20 18 आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली ऐसा. सो या और उसके बाद लाइक छोटे छोटे विंस रहे हैं. लाइक इट हैज मेड अस कॉन्फिडेंट कि हाँ वी कैन डू दिस. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. आई मेट हिम इन अ साइफर 2019 जुलाई 2019 में हम लोग मिले और वेरी एक्सट्रीमली अपोजिट पर्सनालिटीज. आई वाज अ वेरी क्वाइट किड. ही इज टॉल इनफ कि दिख ही जाएगा मतलब ऐसे. या ही एंटर्स द रूम पीपल नोटिस ऐसा सीन है. तो हमने ये कौन है बिकॉज ये अहमदाबाद का लग नहीं रहा है एंड ही हैड टैटूज ऑल ओवर हिज हैंड ये वो ऐसे करके. तो पहली बार वहाँ पे मिले एंड ही स्टार्टेड रैपिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड एनीवन लाइक धनजी ऐसे इन टर्म्स ऑफ हिज स्टाइल. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. फिर हम लोग हैंग आउट करना शुरू हुए ऐसे बिकॉज वी शेयर्ड द सेम लव फॉर म्यूजिक हिप हॉप. ये सेंसर्ड जबान इधर है, अनसेंसर्ड इधर है ऐसा. तो मिले बैठे हैंग आउट किया एंड या दैट इज हाउ वी मेट. एंड वी यूज्ड टू सिट ड्राइव इन के पीछे बॉम्बे पान पार्लर पे. वहाँ पे एक लेन है, वहाँ पे बैठ के हम लोग रैप वैप लिख रहे, डिसाइड कर रहे कि क्या करना है. तो फर्स्ट 2 songs started like that ऐसा. Wow. Yeah, and it's been a crazy journey. Yes, ધનજી કુમાર. હું તો સ્કૂલ ટાઈમે થોડું લખતો કેમ કે મને રેપ બહુ ગમે પહેલેથી અને પછી કંઈ બહુ લાંબુ નહીં. મારા ઘરે થોડી એક બે એવી વસ્તુ થઈ ને પછી મારે ભણવાનું છોડવું પડ્યું. કોલેજ જતો પછી કોલેજ છોડીને પછી હું જઈને રેપ ચાલુ કરી દીધું. અને પછી 2018-19થી હું નાખી રહેલો ગાયનો પણ 2021થી પછી મેં એને એક દ્રઢ નિશ્ચય બનાવી લીધો કે હવે આર્યા પારવાળું. જેમાં તમને સફળતા મળી જ છે કેમ કે જે રીતે સ્યાહી જર્ની કરી રહ્યો છે ઇઝ બીન વેરી હમ્બલ. પણ અમે હજી બી થોડું ઈચ્છીશું કે તમે કયા લેવલ સુધી ગયા છો, કયા શોઝ કર્યા છે એના વિશે પણ થોડું કહો. MA 1 ટાઈમ મળ્યો તો આના જેવું જ પહેરીને આવેલો. તો મેં ગગનો ચૂમી રહ્યા છે અમે. नाज को मिला है भाई. નાઝિર ઓબ્વિયસલી, નાઝિર જોન્સ, નાઝિર બિન ઓલુડરા, વિસ્કી વાલા, આપણે ओजी न्यूयॉर्क ओजी. 2-3 लोग ही रह गए इंडियन हिप हॉप में जिनसे लाइक फेस टू फेस नहीं मिला. लाइक नो वन या स्टैन एक बीइंग वन ऑफ देम. ये कालो को दिल्ली में मिले थे 21. सो या सो वी मेट ऑलमोस्ट एवरीवन. वी वर्कड विद ऑलमोस्ट एवरीवन. शोज वोज भी बहुत सारे प्ले किए. या ऑलमोस्ट 100 शोज और 5 માં કસમ 50 का क्राउड બધા હવે રેપ કરો જેટલા જેને કરવું હોય હવે બધા કરો દિલ ખોલીને. 50 का क्राउड प्ले किया है, 500 का प्ले किया है, 5000 का किया है, 5000 के ऊपर का भी किया है. तो हमने सब देख लिया है मतलब सारी ऑडियंस देख ली है. न्यू ईयर का भी क्राउड प्ले किया है, होली का भी क्राउड प्ले किया है. तो होली की में छुट्टी बॉटल આવે हमने. हाँ, छुट्टी बॉटल बॉटल में फ्रेश पानी बॉटल एक कचरे वाला पानी पीछे zup. छुट्टी बॉटल बंद કરી. આ ક્યાં થયું હતું? આપણે સિંધુવન પર कोई तो पार्टी प्लॉट. हाँ और फिर सीधा बॉलीवुड बजाओ. ये हटाओ यार, बॉलीवुड बजाओ. और तो माइक ખેંચી રહેલા લોકો. माइक खींच देता 15 मिनिट એટલે 3 ગાયન કર્યા અને આમ રેપ કર્યા પછી આમ માઇક ખેંચે કે હવે તો તમારો ગરબા વગાડવા જ પડશે. અરે બાપ રે. But the amazing thing is fans got on stage. કમાના સાંભળવા આયા છે. हाँ 200 लोग में से 500-600 लोग में से 20 होंगे भाई 2000 उस क्राउड था.
उसमें से 20-30 लोग ऊपर आए कि भाई પાછા તો કે હમણાં જ નહીં हाँ એ લોકો ત્યાં માથામાં નહીં ત્યાં अलग જ ચાલી રહી છે मतलब લોકો टेम्पो ભાગી રહ્યા છે वाटर टंकी के ऊपर बैठ के रेन डांस का प्लानिंग हो रहा है वो सब वो अपने अरे में बिजी है पीछे वाले तो सारी शैतान पब्लिक और स्टेज पे 40 लोग चढ़े हुए उसमें पता नहीं अपने वाले कौन से मैनेजमेंट वाले कौन से क्या सीन है कोई आइडिया नहीं है और उसमें સ્ટેજ પર ચડતા પહેલા અમે લોકો બબાલ ગઈ રહ્યા હતા નીચે એક અમારો ભાઈબંધ હતો એની જોડે એક છોકરી હતી એની છોકરી થઈ રહી હતી તો અમે બધા 10 જણા આયા અને એને મારવાનું ચાલુ કર્યું ધીબેડવાનું અને પછી બીજું એક ગ્રુપ આવ્યું કે એ અમને પણ આને કર્યું આ મારો કે અને પછી અમે સ્ટેજ પર ચડ્યા हाँ અને પછી અમારું માઇક ખેંચ્યું પછી બોટલ ટુ મચ અદ્ભુત અનુભવ રહ્યો છે તમારો ક્રેઝી અમદાવાદ मतलब તો સમજો ને એ and time this was Holi just after COVID. Okay. So this was their first Holi after 2 years. So people got wild कि we are getting to celebrate Holi ऐसे तो 2 साल बाद I guess सारा एनर्जी हाँ जंगली हो गए थे. જંગલી થઈ ગઈ પણ એ વાત મેરે ખ્યાલ છે 2021 की है હવે તો ઘણો એવો સિનારીઓ ચેન્જ થઈ ગયો છે Yeah. કરંટ સિનારીઓ વિશે શું કહેશો ડેવલપ યર હવે વધારે ડેવલપ થઈ ગયો છે અત્યારે અગર બહારથી આર્ટિસ્ટ આવે સીધે મોજ શાઉટ આઉટ એ લોકો આવે છે Yes. કારમાં આવે છે Yes. રેપેશ આવે છે Yes. દિગ્ગજ બધા અમારા જે હિપહોપ ના કહેવાય ઇન્ડિયન હિપહોપ ના એ બધા આવી રહ્યા છે અને લોકો પીપલ શો અપ પીપલ પે ધ ટિકિટ એન્ડ પીપલ એન્જોય ધ શો thoroughly સો યર ડેવલપ થઈ ગયું છે ધીરે ધીરે Yeah, and a variety of artists are showing up like Diljit Dosanjh, Karan Aujla, Yeah. all other Aujla people. आता है? Yes, Gift City है तो शायद. I guess. વાજલા પાનના ગલે રોજ ભેગા થતા અને વાજલો માં યાર મને કીધું નહીં કે યાર My first ever concert was Guru Randhawa. So Club 07. Okay. हाँ, my first ever show. उससे पहले मैंने खाली ऐसे गजल्स राहत फतेह अली खान लाइव देखा है ये तो मैंने कभी तो राहत फतेह अली खान लाइव देखा है सोच अच्छी बात है। सबसे पहला शांतिग्राम अडानी शांतिग्राम तो मैं हिप हॉप मैंने देखा नहीं था ऐसे 2013-15 में कॉन्सर्ट शोज हैपनिंग 16 में शायद बादशाह फर्स्ट हुआ था हाँ अहमदाबाद ऐसा प्रॉपर शो so now it's very frequently that people are showing up and they're selling tickets here and कभी हम लोग अपने शो सेटअप करते हैं कभी हम लोग उनके शोज पे जाते हैं देयर आर ओपनिंग एक्ट्स जो हम लोग के साथ है जिनको अलग अलग जगह पे चांस मिल रहा है अलग अलग शोज पे चांस मिल रहा है तो जस्ट नॉट अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग फॉर अस बट ऑल्सो फॉर अदर आर्टिस्ट एज वेल जो अभी अपकमिंग है एंड यू विल बी हियरिंग देयर नेम्स इन अ ईयर और टू 100%. That's good. And it's just not Ahmedabad, it's Surat, Vadodara, Rajkot, Anand. Yeah, it's everywhere. પોરબંદર જામનગર Bhuj bhi, somewhere in the Bhuj, Bhuj, yes. yeah, yeah. Gandhinagar also. So there Gandhi is, to Ahmedabad ki. yeah, there is hip hop growing everywhere. मतलब in the state we can say that for sure. मतलब बहुत अच्छे नाम आएंगे अभी 1-2 साल में. વાવ Yeah. સો આપ દોનો કે પર્સોનાથી વાત કી જાય બંને જણા બહુ જુદા છો એકબીજાથી એટલે તમારા પણ હું વિડીયોઝ જોઈ રહ્યો હતો તો તમારા ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોજેક્ટમાં કામમાં મને એક થોડી કમ્પ્લેન દેખાય છે કहीं થોડા સા દર્દ હે તમે તો સખત તોફાની છો યુ આર જસ્ટ ક્રેઝી આવું મને લાગે છે આવું હું તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પર્સનલી પૂછું તો હાઉ વિલ યુ ડિફાઇન યોરસેલ્ફ No, I think he's crazy about his art. That's what I can say. But I can't say things about me. He's crazy about his art. मैंने हिप हॉप में इतना पैशनेट किसी को रेयरली देखा है मतलब I've sat with a lot of artists and जितना ये जीता है उतना मेरे को नहीं लगता कोई क्लोजली जी सकता है इस कल्चर को so yeah and like there are some good verses that he has written that has like pain displayed and like or portrayed beautifully it's just that people love when he goes out of the box and delivers something that they were not expecting so yeah as much as they love vulnerable Syahi and as much as they love out of the box crazy passionate Dhanji they are still waiting for vulnerable Dhanji and crazy Syahi there is some attention to both of the characters also because I have seen that because I have मतलब इसका एक गाना है रूआब पे इसकी एल्बम पे एक नंबर ही એક ખબરી एक खबरी 2 नंबर ही I think that's my favorite song on the album because I love how he talks about the struggles there so yeah that's Dhanji for me that's like he lives what he says and he's real to the mic 100% whenever he steps in the studio and I have major respect for this guy and yeah man and because this is a really long like this is after a really long time we're doing a podcast together so Wow. yeah he makes me competitive inside the studio and I love that and the way he's been handling business inside
inside the city in this state makes me push myself harder all the time. There's no envy, there's no jealousy, but it's just pure love and pure competition. And I love that we both are hungry till date as much as we can do. मतलब मैं 2 महीने बाद इसको पूछता हूँ ये कुछ नया कुछ बिग मूव लेकर आएगा और बोलेगा देखो पता मैं ये कर रहा था और मेरे को कोई आइडिया नहीं होगा, और फिर मैं 2 महीने बाद बोलूंगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ. मतलब एक शहर में रह के खुद एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया है, और मैं बहुत खुश हूँ जब हम दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं और कॉल उठता नहीं है ना पहली बार में, मैं खुश हूँ कि ये बिजी है, ये काम कर रहा है तो इसको करने दो. ऐसा मेरे लिए ये है धनजी. ऐसा. और धनजी कुमार आपके लिए क्या है CI? આ એમને મન નાખે તો અહીંયા આજે કહી રહ્યો. હમણાં હર્ષ સંઘવીએ કંઈક એક વાત કીધી હતી કે યુવકો તમે લોકો પાર્ટનર ઇન ક્રાઇમ ના કહેશો. જોયું તો આ એ જ અમારો તો સમજો ને. એટલે અમદાવાદની વાત આવે એટલે હિપહોપની વાત આવે એટલે અમે એ જાળવીને રાખ્યું છે. એમાં પાર્ટનર ઇન ક્રાઇમ છે. સિટિંગ રાઇટ નેક્સ્ટ ટુ મી ફ્રોમ લાઈક એને જે કીધું ને કે એને બધું જ જોયેલું છે. લાઈક ધ લો લોઝ સેમ વિથ હિમ. તો ઘરથી નીકળી ગયો તો થોડા ટાઈમમાં ઘરે રહી રહેલો, ઘરમાં ગુરુકુલમાં રહી રહેલો. आंटी को मैं मासी बुलाता हूँ, मेरी मासी है, ये पापा को चाचा बुलाता है, तो वैसे अब वैसे संबंध हो चुके हैं. तो it's family at this point. Yes. Nothing comes about that. yeah. અને ખાસ તો આ જે બધું લખો છો, આ એક તો ખૂબ જ મહેનત છે, આમાં બહુ જ બધા વિચારો છે. તો આ લખવાની કોઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યા છે કે ત્યાં તમને આ વિચાર આવે છે કે રેન્ડમ કોઈ પણ જગ્યાએ વિચાર આવી જાય છે? ગમે ત્યારે. नहीं विचार तो कहीं पे भी आ जाएगा. कहीं पर भी आ जाता है, ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहीं बैठ के हम लोग ये लिखते हैं? नहीं, इट हैज मतलब मेरे लिए पहले बाथरूम था. अच्छा. हाँ, फिर मेरे लिए एक्टिवा थी कि एक्टिवा पे निकलते एक बीजू चालू है. या और मेरे वो ऐसा था कि इतना स्पेस है ना, अंदर टीवी है ना कुछ है, 2-3 काम ही कर सकते हो अंदर बैठ के. तो अभी लिखोगे ही ना, क्या करोगे, और कुछ है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. બાથરૂમ વાળા બહુ લોકો છે. હું એવું તો ગણો પણ મારી બાલ્કની વધારે છે, પણ બાથરૂમ વાળી બહુ જનતા છે. બાથરૂમમાં બેન લખવાનું. फिर इट बिकेम नील स्टूडियो फॉर मी. मैं सो मेरा रिकॉर्डिंग टाइम जब मैं इससे मांगता हूँ, अगर एक घंटा रिकॉर्डिंग टाइम मांग रहा हूँ तो वो 45 मिनट्स मेरा राइटिंग का जाता है वहाँ पे, कंपोजिंग का जाता है. फिर वो 15 मिनट में रिकॉर्ड करता हूँ. मैं लिख के नहीं आता आजकल, मैं लिखता स्टूडियो के अंदर, मेरे को वो आदत पड़ गई थी. तो पिछले 3-4 साल से इट हैज बीन हिज स्टूडियो, एंड देन लेटली आई लाइक गॉट अ प्लेस ऑन रेंट जहाँ पे हम लोग धीरे धीरे चीजें सॉर्ट कर रहे हैं. दैट्स वेयर आई हैव बीन राइटिंग. अब 3-4 पीसेस मैंने वहाँ से लिखे. दैट इज माई गो टू प्लेस फॉर कंपोजिंग, राइटिंग न्यू सॉन्ग्स अभी के लिए. सो या बट रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, इट्स बीन द सेम प्लेस, Vajo Studios, like for the last 7 years. And somewhat Agori Music also. They're also nearby. They shifted, they took their own studio अभी. બાજુમાં જ આવી ગયા એ લોકો. हाँ एकदम, मतलब बहुत पास में, मानसी सर्कल पे. क्रेजी हो गया वो भी. તો એવી કોઈ ઓડ જગ્યા, કેમ કે આટલું બધું ટ્રાવેલ કરતા હો, કોઈ એવી વિયર્ડ કે ઓડ જગ્યાએ સખત વિચાર આવ્યો કે અહીંયા મને આ વિચાર આવ્યો, હવે લખવું પડશે, ऐसी कोई जगह है? मेरे को 2 व्हीलर पे आया भाई, और अब मैं लिखूं कैसे? समझ रहे हो कि एक लाइन आई अभी भाई, माँ जी का ध्यान या फिर माई जी के टंटे, समझ रहे, ऐसा अब मैं लिखूं कहाँ ये सब, समझ रहे. मैं 2 व्हीलर पे हूँ, ऐसा भी है. देन वी बीन ट्रैवलिंग अ लॉट. तो માહીજી કે ટંટે. हाँ समझ रहे. આપણે પેલા જેવું ઘરની જેવું. सो या वियर्ड प्लेसेस है. शोज के बाद है, कभी कभी शोज के पहले डिफरेंट स्टेट्स, व्हेरेवर वी आर ट्रैवलिंग, ट्रेन के अंदर, प्लेन पे, हर जगह आई गेस कर ही लिया अब तक. બાગડા પર બેઠા બેઠા. या हाँ, अभी लिखना भी उतना नहीं होता. इट्स मोस्टली फॉर हिम आल्सो, इट्स लाइक गो स्ट्रेट टू द माइक एंड जस्ट डिलीवर. अच्छा. So yeah, he stopped writing. That's what most of the times. જે ગયું આલ્બમ ગયેલું ડ્રાઇવિંગ સિનેમા 2.1, હા. એમાં એનો ખૂબ બહુ પ્રયાસ કર્યો હતો એવી રીતના કરવાનો. એક નવી ટેકનિક છે, અને બહુ બધી જગ્યાએ ચાલે. ઇટ્સ કોલ્ડ પંચિંગ ઇન. અને આપણે રસલા ભાઈ એ ટેકનિક બહુ વર્ષોએ કરી રહ્યા છે. અત્યારે બહુ ફેમસ થઈ ગઈ, એની પહેલે કરી રહ્યા છે, અને એની થોડો વિકૃત છે થોડો. એટલે એની જોડે બેહીને એની પદ્ધતિથી આખું કામ કર્યું, અને એમાં આ રીતના આવે. લખવાનું બહુ ઓછું. ઓકે. 1 કલાક રેપ કરો, 1 કલાક સલંગ માઇક ઉપર રેપ કરો, પછી એમાંથી 3 ગાન બનાવે છે. અચ્છા. અને એ ઓન ધ સ્પોટ જ હોય એમ? Yes, impromptu. એ ભાઈ ગાયન બનાવે, બે અઠવાડિયું લઈને શાંતિ બધું છાંટીને બનાવે,
પછી ત્રણ ગાને મેં બનાવી નાખ્યું. સો ઘણા બધા રેપમાં મેં જોયું છે ઘણી વખત ઇનડિરેક્ટ મેસેજીસ પણ આપણે આપતા હોઈએ છીએ એમાં કોઈની ઉધારી બાકી છે કે ક્યાંક બ્રેકઅપ થયું છે કોઈને ધમકી આપતા હોય એવું કોકના માટે તમે કર્યું છે કોના માટે હા. ચલો કોના માટે નહીં પણ શું હતું એક્ઝેક્ટલી There's a song called Credit Department. Both of us, like इसके album पे था 4 track. Track number 4 right? Yes, 5. Sorry. 5. Yeah, track number 5. तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि इसको गिनाना नहीं था कि लोगों के लिए कितना किया है और लोगों से कितना लिया है बदले में. तो मैं नहीं गिनाऊंगा पर तू गिना. तो मैंने गिना है और मैंने उन लोगों का गिना है जिन लोगों का गिनाना बचा था. अच्छा हाँ, जो लोग ऐसे थे कि भाई हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने उनको गिना कि हम के लिए क्या किया, तो फिर वो चलता रहा. है ऐसे 2-3 ट्रैक्स है. तो वो क्या थी लाइन Like we used to work for a company, like for example, we used to teach rap there. तो उनका थोड़ा आउटस्टैंडिंग बिल बच गया था जो उनको पे करना था, वो नहीं किया तो बोल दिया हमने. तो कौन सी लाइन गा के बोला था आपने बच्चा लोग की रिसीट हाँ. गायब हुई TDS रिसीट भी गिना. टैक्स के नाम पे काटे पैसे मनी है. No. शो की टिकट बेचो ले लो कट. अहमदाबाद इकट्ठा किया वो गिना. लाइव इन AMD फॉरएवर, फोन पे बात किया था, रिचार्ज गिरा रिचार्ज भी गिना. पर कब तक चलेगा ऐसा, शहर में तेजाब मुना पैसा चाहिए, गिना रिचार्ज गिना डेटा. और कभी कभी लगता है स्टूडियो आवर साला घंटा नहीं देता. एंड ऑफ डिबेट तू हल्का नहीं ला, हाथ थे मैले और व्यवहार कमी ना. बारगाम बुलाना भारी पड़ेगा. अभी इनको नया वाला रेट गिना. पल दो पल में रुपया गिरेगा, जितना गिरेगा झुक के लेगा. अभी औकात पे उतर आए. तुझे ऑडियंस दिया, तुझे क्लाउड खींचा, तू सब भूल गया क्या, तुझे पेड फीचर दिया, अब क्या सीन खाएगा. जो लेने का है वो तो मत ही गिना क्योंकि जो देने का है उसके ऊपर है. लालच बुरी भला पैसा ही मेरा दुख दर्द है. कम एंड सी करम से करेंसी, अभी तो 16 किस द ओनली गोल है सी इजी. Fuck a corporation, but it all wouldn't have been possible without a corporation. વાહ Yeah. તો રિપ્લાય આવ્યો તો પછી એમનો કંઈક ઇનડાયરેક્ટલી કે ડાયરેક્ટલી आया था, एक दो आया था. ग्रेट वर्क, लव्ड इट. हाँ ऑनेस्टली मतलब एक दो का आया था ब्रो, ऐसा है ब्रो. तो मैंने बोला अब तो रेडी रहेंगे, अब तो कुछ आने वाला है. लीगल जो भी अब तो देखना पड़ेगा. मैंने मैसेज किया भाई को कि भाई कुछ आया है, कुछ आया है. फिर नेक्स्ट वन हर्ड द ट्रैक, इट्स ऑसम. फायर इमोजी. સો તમારે મને એમ કહેવાનું છે કે તમારું આમનું કયું ફેવરેટ ક્રિએશન છે અને તમારું આમનું કયું ફેવરેટ ક્રિએશન છે અને કેમ It would be harder to pick. Like I'll give you 2-3 picks. एक खबरी 2 नंबरी for purely the storytelling, and then Guru because he knows how to design music. He knows how to play a crowd of 50 and a crowd of 50,000, and I can guarantee you that. That's Guru. That's his track. I think it's Ashish Bhai ka second verse. Yes, Ashish Bhai ka second verse is that's beautifully written. Like I want, sometimes I just want him to do what I am doing, like mere liye inke side mein, and then that's what he delivered, and he did it very very beautifully. And yeah, these 3 tracks for me. एक नंबर. Yeah, I would pick the whole album of Sultanat and Crazy. the whole rollout, the way he put it together. Finally, मतलब ऐसा Yeah. लगा पहली बार कुछ एक इकट्ठा करके ready to go, locked and loaded वाला. And seeing him work on that to fruition. હવે આ ક્વેશ્ચનને ઊંધો કરી નાખીએ. તમને એવું થયું કે યાર આ કેમ ક્રિએટ કર્યું હતું સાવ આવું હા. એવું શું છે એક ગાયન જેનું વિયર્ડો કરીને કેમ બનાવ્યું वो गाना भी पड़ेगा એ નથી ગાવામાં આવવાનું અને Copyright એ આયેગા. અમારું પેલું બધું કમર્શિયલ કામ. Brandy. Yes. એનું પર્સનલ તો હું આઈ વુડન્ટ ઓનેસ્ટલી પિક અ સિંગલ સોંગ. મે બી અર્લી સોંગ્સ કે જેમાં બહુ મોનોટોનસ હતો એન્ડ ઓફ કોર્સ ફાઉન્ડ હિઝ વે. મારા પણ એવા જૂના ગીતો જેમાં હું બહુ જ એ રીતના ગમે તે કરી રહ્યો, ગમે તે ચાલી રહ્યું, આમ ત્યાંથી તેમથી આવી રહ્યું છે. એટલે યુ આર સ્ટીલ લર્નિંગ, સો આઈ વોન્ટ કાઉન્ટ દેટ. પણ કમર્શિयल કામ તો અમારા એવા છે Yes. જે રિલીઝ નહીં થયા. हाँ, अब मेरा भी उसमें से ही एक है. ખાલી WhatsApp ગ્રુપો ઉપર રિલીઝ बस वही वाला है मेरा फेवरेट. वो व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचा ना, वही वाला. વેક્સિન માટે અમે ગાયન કર્યું. Yes. બૂસ્ટર ડોઝ લો બધાએ. Awareness rap. NGO Yeah, for yeah. So that's something that I was like ये क्यों बनाया, पर उसमें मैं भी इक्वल भागीदार था, तो पता है क्यों बनाया.
थोड़ा कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते क्या? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या था वो? सुन मेरे दोस्त, ले जाके वैक्सीन डोज वैक्सीन ले लो तो हारू जीवन सचवाए बदारू। सुन मेरे दोस्त भाई, और हमने क्या किया था, इंग्लिश हिंदी गुजराती तीनों में उनको चाहिए था, तो हमने तीनों करके दिया था। વાહ, ગુજરાતી વાળું સૌથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યું મને. હું શું કહું, રોગચાળો ફેલાયો, બહુ વેક્સિન લઈ લો તો હારું. જીવન સચવાય બધાનું. મેં શું કહું, રોગચાળો ફેલ. સો તમે બંને જોડે કામ કરો છો, લોકોને એવું છે કે તમે ડ્યુઓ છો, છતાં બી તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ્સ આવ્યા, સલ્તનત, રૂઆબ. સો એક્ઝેક્ટલી સિનારિયો શું છે? વી આર ઓલ ઓફ અસ આર કલેક્ટિવ. Yeah. અમદાવાદના જેટલા છે, હું જો આજે આચાર્ય છે, નીલ શીખે છે, હમ. અમે લોકો એક કલેક્ટિવની જેમ કામ કરીએ છીએ. અને ફ્યુચરમાં પણ આ જ કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓલરાઈટ. Yeah. We have made a lot of songs together. So it's the audience that loves us as a duo. कि धनजी सियाई साथ में आएंगे ना तो मैजिक क्रिएट होगा ये वो करके. एंड वी डोंट वांट टू गिव देम एवरीथिंग एक बार में कि हाँ लो एक. So when we come together on a project, they love us. But individually, we have a separate audience as well, and they love us equally. So we want to keep continuing that. At the same time, you know, it has almost become a celebration or an occasion when we drop together, and people love our chemistry together. So yeah, we just are not calling it a duo. It's not a duo, Unofficial duo. but it's an unofficial duo. Yes, David Fincher, Brad Pitt. yes, most frequent collaborator. ઓલરાઈટ. Says See Them Out. Yeah, yeah, Honey Singh Alfaz. yes, રાઈટ. yes. फिर Krishna Raftar. प्रियदर्शन परेश रावल. Yeah, Unofficial duo. yeah, yeah. તમારા પ્રોજેક્ટ્સમાં તમારા કામમાં અમદાવાદનું બહુ જ મેન્શન હોય છે. પ્લસ MTV અસલ 4માં ઇટ વોઝ AMD ઓન માય બેક, AMD ઓન માય બેક. તો અમદાવાદ માટે તમને એક અદ્ભુત પ્રેમ છે, એક અનેરો પ્રેમ છે. સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મારો એ જ છે, એઝ ઇટ ઇઝ ધી ઓડ પોડ, અમદાવાદને સરસ રીતે જાણો છો, તો મને કહો કે અમદાવાદની અમુક એવી કઈ ઓડ વસ્તુઓ છે જે તમને લાગે છે, અમદાવાદ હોય કે અમદાવાદીઓ, કે આ થોડું અજુગતું છે? બહુ વર્ષો મેં પેલા રિક્ષામાં પગ નીકાળે એ નહીં જોયું. બહુ વર્ષો એટલે હું એ કહેતો પણ બહુ ટાઈમ થઈ ગયો વાતને જોયે એને. ઓકે. નહીંતર એ તો છે જ એક અઘરી વસ્તુ, અને મને નહીં ખબર બધે થાય છે કે નહીં. યુપીમાં થતું હોય ખબર નહીં. બીજી I think खाना है मेरे लिए तो. થોડા સા ઓડ હે. मतलब it can go to extremely delicious and extremely weird as well. एक्सट्रीमली वियर्ड इज क्या टेस्ट किया था? चॉकलेट पिज़्ज़ा. चॉकलेट पिज्जा के अंदर Chocolate चीज, हाँ मतलब सब टेस्ट के लिए है. मैगी भजिया भाई, मैगी भजिया मैंने पहली बार अहमदाबाद में खाया था, and I got कि भाई ये क्या रेसिपी, और मेरे को बहुत तब से एवरी मॉनसून मैगी भजिया. हाँ પછી પેલું આપણે ચીઝ જામ સિંગ સેવ. चीज जैम सिंग सेव. સ્લાઇસ. टंग ट्विस्टर देगी वो आपको. एंड व्हाट अबाउट अहमदाबाद? इज अहमदाबाद તે એવું પેલું ફેમિલી જેવું કે હવે તમને કેવી ના ખબર પડે કે આ આવું છે. મેં જેટલું રહી લીધું છે ને કે નોર્મલાઇઝ થઈ ગયું, મારે ઇન્ટરનલાઇઝ થઈ ગયું છે બધી ગાંઠપણ મારી અંદર. અને એકબીજા વિશે કંઈક ઓડ એવું લાગતું હોય શું છે? આ અમદાવાદની બહાર રહે છે, એને કેવું કોઈ થાકી ગયું. પેલા બોપલ રહે તો હવે એનથી બહાર શિફ્ટ થઈ हाँ ગયું. तो अभी और दूर हो गए. હું આવું એટલે તો સમજો મારે બહુ મેં કહું તેના ઘરે પહોંચ્યો એટલે હું કહું ભાઈ તું કેવું અમદાવાદ કે બહાર આવી ગયા ભાઈ. हाँ कसम, मैं थोड़ा और पीछे चला गया, और ये थोड़ा और इस साइड है. इसका ऑफिस अब उस घर के भी उस साइड है, तो अब मेरे को अगर मिलने जाना हो तो हम लोग का डिस्टेंस और बढ़ रहा है ऐसे करके. तो ये बट द बेस्ट थिंग अबाउट अहमदाबाद इज whenever I go outside the city is that I miss chai. મેં કીધું ને અમદાવાદ कभी चाय कभी खराब नहीं પીવડા मिलती. પીવડા કે નતું કીધું. हाँ એટલે એમણે એવું કીધું કે બહુ ચા પીવડાય કરે એટલે મેં ચા પીવાની છોડ દીધી. ના 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 नहीं चालू कर दी थी, અરે ચાલુ કરી पसंद નાખી. आ गई थी, फिर इसने बंद करना चालू किया કે कि ના नहीं હવે ये તું नहीं. રહેવા દે કે નહીં ખાવા મને. हाँ ઓકે. મારા દાદા જેવું કે મારા દાદા દિવસ 20 ચા પીતા હતા. ઓહો. સાયકો પેલી આખી વાળી પછી રકાબી નહીં આમ. सुबह उठ के मग चाहिए मेरे को हाँ, ऐसे ये फंक्शन करने के लिए, वैसा सीन है मेरा. हम्म. हाँ बाहर भी ऐसे बहुत सिलेक्ट, रजवाड़ू बेस्ट मेरे लिए. वो उसका टेस्ट लग गया मेरे से, चख लिया ऐसे, खून चख लिया मेरे. तो अभी અફીમ નાખી ના લે. नहीं भाई, बट यस चाय मेरे लिए इज द बेस्ट थिंग इन अहमदाबाद. તો ઇतना સારા ટ્રાવેલ કરતે हैं आप लोग, આટલા બધા શહેરોમાં શોઝ થાય છે, આપ લોકોના ફેન્સ કેવા હોય? કાં તો ફેન હોય
તો ક્રેઝી હોય કાં તો ફેન ના હોય, દેર ઇઝ નો ઇન બિટવીન. Yeah. એવો કોઈ ક્રેઝી ફેનનો અનુભવ થયો હોય, કોઈ ક્રેઝી મોમેન્ટ થઈ હોય કે આ યાર આ તો જોરદાર થઈ ગયું આપણી જોડે? Well, I love when they bring fan arts. When they sketch the whole fan art and they bring it to the shows just to get a sign on it and then they give it to us. So I have seen fans like that. I have seen fans who've almost cried when they've seen me. I have seen fans जिनका कोई लेना देना ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन बाजू वाला फोटो खींचा रहा है तो उसको भी खींचनी है. કોઈ તો હોંગે. हाँ, but તમારું પેલું 4432 भाई ગાય हाँ, બહુ ગમે. 4424 गाने का नाम है. अरे भाई आपका 9984 भाई. ये तो बहुत गमे. 9984 तो क्या मतलब 9984 कब निकाला ये वो करके. So बहुत बार हुआ है भाई मेरे साथ. Yeah, people have like I know you. I'm like thank you भाई आचार्य भाई क्या गाना बोला तुमने. Like भाई स्यागी हूँ भाई. मेरे साथ ऐसा भी हुआ because भाई एक पॉइंट था हम चारों के लंबे वाले थे. અચ્છા. तो किसी को पता ही नहीं धनजी कौन है, स्याही कौन है, आचार्य कौन है, नील कौन है, कोई है नहीं, चारों लंबे वालों में घूम रहे. सो वैसा भी हुआ है. बट ऐसे हेट्रेड कभी फिजिकली या फेस टू फेस कभी कुछ नहीं. इट्स ऑल जस्ट डिजिटल, इट्स ऑल जस्ट कमेंट्स. नेवर हैज लाइक ऐसा कोई मोमेंट नहीं आ कि कोई आके बोले कि यो यू नो व्हाट आई डोंट लाइक योर म्यूजिक, या ऐसा कुछ है नहीं अभी तक. मतलब अगर क्रिटिसिज्म आया तो ऑनलाइन ही आया, गाली भी पड़ी है तो ऑनलाइन ही पड़ी है, फेस टू फेस ऐसा कुछ हुआ नहीं है. એન્ડ યુ ધનજી, એની ક્રેઝી ફેન મોમેન્ટ, એની ક્રેઝી ફેન એન્કાઉન્ટર કે આ ખતરનાક થઈ ગયું યાર આપણી જોડે? ખાસા બધા. એમાં એક કહું ને ખતરનાક ગયા વર્ષે થયેલું. એક ભાઈ આવ્યા અને ચાલુ સો મને અમને એક ચેન પહેરાવી દીધી અને આમ ખુલ્લી હતી એટલે એને આમ લટકતી હતી. મેં આખો શો કરી નાખ્યો. એની પછી મેં જોયું ને તો હતી હજી ભારે હતી થોડી. આ બી એમાં એક કે નથી, ત્રીજી હતી. મેં કીધું ઓકે ચલો જવા દો. રેન્ડમલી હા રેન્ડમલી આ. મેં કીધું હવે ઘરે જઈને જોડાવું. એની પહેલા તો એ ભાઈ આવી ગયા ફરતી પાછા બેક સ્ટેજ. દાદા કે મેં આપી દીધા કે ના આવ્યો ને પછી મેં કીધું સાચું કે અસલી કે ડી છે? હા. તો કે હીરાને સોનું થોડી અપાય એવું કે કીધું. એવું કે એને કીધું તો સમજો. આ અમદાવાદમાં છો તો? આ બરોડા થયેલું. બરોડામાં. ભાઈ અમદાવાદના જ છે. હા ભાઈ પાકા અમદાવાદી. એટલે પછી આખો ટૂર અમારા સાથે હતા. એ દરેક શોમાં આવ્યા છે ભાઈ. અરે વાહ. હૈદરાબાદ થી હોય કે પુણે હોય કે તમે સમજો ગમે ત્યાં, દિલ્હી બોમ્બે બધે પહોંચી ગયો તો એ ભાઈ. વાવ. મને પેલું આમ ફોટો નાખ્યો કે જો દાદા આવી છે અત્યારે, પણ આજે રાતે તો હું આવી જઈશ. ક્યાં વાત છે. અને હજી પણ આવે છે દરેક શોઝમાં? બધે. શાઉટ આઉટ મિસ્ટર પંડ્યા. મિસ્ટર પંડ્યા. આખું નામ નહીં પણ મિસ્ટર પંડ્યા. સો આ તમારા જે અટાયર છે વેરી સ્ટાઇલિશ. થેન્ક યુ. આનું ક્યાં કેમ પ્રેશર રહે ખરી કે શોમાં જવું હોય ત્યારે તો પહેરો, પણ પછી ક્યાંક બહાર જઈએ તો કે મારે આવું આ અટાયરમાં તો રહેવું જ પડે, ગલ્લે જઈએ તો કે આવું થોડું તો રાખવું જ પડે, એવું કંઈ ખરું? मैं मेरे से लेदर नहीं पहना जाएगा, वो लेदर पैंट वैंट ऐसे ये वो करके, क्योंकि शो के बाद जो पसीने आते हैं ना भाई मैनेज ही नहीं हो पाएगा मेरे को. हाँ, मेरा रूटीन है 2 गाने पहले खत्म हो गए, मैं मैनेजर को दूंगा, मैनेजर बोले रेडी है, मैं खत्म करूंगा, वो मेरे को भगाएगा नियरेस्ट वॉशरूम, नियरेस्ट ग्रीन रूम जो भी होगा, मैं वहां जाऊंगा, नहाऊंगा, नहा के 5 मिनट में नए कपड़े पहन के बाहर. ये रूटीन है मेरा, क्योंकि वो पसीने बहुत हो जाते हैं. तो लेटली मैं लूज कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े स्टेज पे पहन के जाने का, शो खत्म करने का. कूदा कूदी है स्टेज बहुत ज्यादा गर्मी दौड़ उछल कूदा जो है भाई. एक शर्ट तो गीली हो ही रही है. हाँ, एक शर्ट तो गीली होगी पसीने में वो करके. नीलिया नारू पेलू गिटार लेके बैठ जाए. और महंगी चीजें आज स्टेज पे पहनने का ही नहीं, महंगी चीजें मैंने सीख लिया. रायपुर पे एक शो हुआ था भाई, कुछ वन ऑफ वन एक चश्मा मिला हुआ कहीं से, कोई ऑप्टिशियन से कहीं से उठा के लेकर आया था, बहुत ही क्रेजी था. उस पे बाय 1 गेट 1 की डील थी, तो मैं 2 लेकर आया था. अब वो 2 चश्मे में भाई ऐसा था कि मैं सबसे क्रेजी वाला चश्मा पहन के चढ़ा गया रायपुर के स्टेज पे. तो यहाँ से एक लड़की शेड्स सर तो मैं पहले तो मना कर दिया, पहले मना कर दिया सर, लेकिन आपका चश्मा. और उसने पहने चश्मे, उसने भी पहने. 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तीसरी बार मेरे को गुस्सा आ गया कि नहीं यार. फिर मैंने चश्मे उठा के पीछे डीजे के डेक पे रख दिए कि नहीं, चांस ही नहीं मिलने के. फिर मेरे को रेला हुआ, सबने देखा कि मैंने क्या किया. फिर मैं लेके गया चश्मा और मैंने इसे फेंके, और एक बंदा कूदा है जो हवा में, और उसने वो चश्मे पकड़ लिए. लड़के ने पकड़ लिए, कोई चश्मे जिसको चाहिए भी नहीं थे उसके हाथ में चले गए. अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरे चश्मे चले गए ऐसे करके. फिर वो लाई कि आप मेरे ले लो. ऑलराइट
तुम्हारे भी बुरे नहीं है, ले लिया तो मैं उनके चश्मे ले लिए। हाँ पूरे शो पे ये हो रहा है, तो समझ रहे, एक एक गाने के बाद आप मेरे चश्मे ले, तो मैं चश्मे पहने, पूरा शो हो गया, बैक स्टेज बुलाया, ये वो करके सर चश्मे वापस दो है ना, दे दिए भाई, ले लिए। वो गाड़ी फॉलो करके भागते भागते आई थी कि मेरे चश्मे यो करके, मैं मतलब ले लो आप, रख लो करके। मेरे भी गए, जो लिए थे उसने स्टोरी में डाल दी कि श्याई को चश्मे गिफ्ट किए, और फिर बैक स्टेज आके चुपके से निकाल भी लिए अपने चश्मे। तो ये सब भी देख लिया मैंने। तो स्टेज पे कोई महंगी चीज नहीं, कुछ नहीं, लूज कपड़े, बस जो भी है सब पसीने में आने वाले, देन गो या हिप हॉप कपड़ा। या we love to wear these things, we love to like buy things also, because अभी मतलब कर रहे हैं मेहनत तो थोड़ा बहुत खुद पे खर्च लेते हैं। તો સાદા કપડા છે કે નહીં, કે બેસણામાં જવાનું આવે તો શું પહેરો તમે? है ना, 100% है એવું ચપ્પો વપ્પો ખરો બેસણા? oversized white એમાં ભાઈ એમાં ઓવરસાઇઝ વાઇટ ચપ્પલ, એટલે સ્ટાઇલ તો ના જવી જોઈએ જે હોય એમાં। તો બેસણામાં પછી લોકો ઓળખે ખરી તમને કોણ આવ્યું તો ખબર નહીં, કે આવી તો દેખાયો નતો કે अभी तक ऐसा कोई જબ્બામાં हुआ- જોયો જ ના હોય। अभी तो हुआ नहीं ऐसा किसी के बता। બેસણું છે પડી। मेरा फ्यूनरल आउटफिट ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है। ઓકે, એક સોંગની લાઈન છે કે પેપર કમા પેપર ખર્ચ, તો કોણે કેટલા વધારે કમાય અને કોણે કેટલા વધારે ખર્ચ્યા બંનેમાંથી? मां कसम। कमाया तो दोनों ने बहुत है, वो तो क्रेजी है, कमा तो सही रहे दोनों, उतना पता है। खर्चा कम है, इन्वेस्ट ज्यादा किया दैट्स गुड। दोनों ने। अच्छा, हाँ तो वैसे दोनों में ज्यादा खर्चा करता कौन है? भाई, खर्चे का ऐसा, अभी कपड़े चाहिए कोई भेज देगा, फ्लाइट पकड़नी है कोई कर देगा शो के लिए, स्टे करवाना है कर दे, तो अपना जो चीजों का खर्चा है वो अपन पोता टेक राइडर में ही कवर कर लेते हैं। हाँ कि भाई यहाँ से कॉल आ रहा है तो वो टैक्सी भी भेजेगा, वो होटल भी बुक करेगा, वो ये भी करेगा, शो करके वापस, तो उतना कुछ है नहीं। और जहाँ जहाँ घूमना था वहाँ शो मिल गए तो वहाँ घूम लिए, ऐसा। तो खर्चे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, बिकॉज ही इज रनिंग थलतेज पब्लिशिंग कंपनी, आई एम अ पार्ट ऑफ कल्चर जूस, वी हैव आवर ओन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट गोइंग ऑन, सो वी आर इन्वेस्टिंग देयर बिकॉज वी सी दिस बिकमिंग अ थिंग। तो मस्ती વાત જ નહીં ભાઈ। हाँ એમ કે પેલું પેડિયો પૈસા એટલું બધા ખર્ચી જાય ને हाँ, પછી मतलब वो एक साल होता है। એટલા બધા એક સાથે ને બૂમ બામ થયો એટલે પેલા ખોવાઈ જાય, આર્ટિસ્ટ ખોવાઈ જાય અને પછી જો પાછળ જો તો કઈ રહ્યું ના હોય। तुम 2 खर्चोगे 3 खर्चोगे, चौथे में अकल आ जाए, बिकॉज वी नीड money to stay with us for long and not just for a short period of time, so we are trying to invest as much as possible, different areas, different companies, so ગુજરાતી માઇન્ડસેટ। yes, वो अकल जल्दी आ गई, तो वो अच्छी चीज़ है। સો ઘણા બધા લોકો તમને આઇડલ માને છે, ઘણા બધા લોકોને આ ફિલ્ડમાં આવવું છે, ઘણા બધા લોકોને મ્યુઝિશિયન બનવું છે, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। और तुम सुबह उठ के अगर उठ रहे हो और दिमाग में ऐसा स्ट्रेस नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे, बिकॉज हमारे जैसे लोग हैं ना भाई, उनके स्टार्ट करते वक्त जब डिसाइड कर लेते कि बस रैप ही करना है और आज शुरू कर रहे हैं और हम कुछ छुएंगे नहीं, तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे स्टूपिड साउंड करता है। तो तुम्हारे पेरेंट्स को, तुमको, बिकॉज आई लाइक गोइंग बैक इन टाइम, आई फील लाइक आई वेस्टेड अ गुड टाइम जस्ट कि आज बनाऊंगा, हो गए 6 महीने हो गए, एक गाना नहीं बना। तो वो डर मेरे को वापस नहीं चाहिए कि आई वॉन्ट टू मेक सॉन्ग्स, लाइक 1 2 गाने 3 गाने 4 गाने 3 हफ्ते में मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट, ऐसा मेरे को वो, मतलब भगवान ना करे कि कल को पेन उठाए और ऐसा हो जाए कि क्या लिखूं, वो मुझे कभी नहीं चाहिए। तो वो मेरा सबसे बड़ा डर है। तो मैं वही लोगों को बोलूँगा, पेशेंट रहो और लिखते रहो। अगर तुमको ये सीरियसली लेना है तो इसको सीरियसली लो। रैप बहुत कूल है, हिप हॉप बहुत कूल है इन टर्म्स ऑफ दिखावे में, कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे जूते पहनते हैं, लेकिन वो जो जूते खरीदते वो जो चप्पल घिसी है उसका लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं लगता। बार्स समझ रहे हो? तो वो बहुत मुश्किल है शायद। मतलब लोगों ने हमारे सक्सेस देख के मतलब इसको फैंटेसाइज किया, लेकिन उन्होंने लॉस देख के उसको सीरियसली नहीं लिया कि यार ये स्याही ने किया जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है, ये हम नहीं करेंगे, इससे बच के चलेंगे। और ये ऐसी बहुत मेहनत लगती है भाई, माँ कसम बहुत मेहनत लगती है। मतलब एट द सेम टाइम मस्ती में ऐसा लगता है सब कुछ हो गया, बट हमको ही पता है हमने कितना देखा है, कितना लिखा है, कितना नहीं लिखा है, क्या किया है क्या नहीं। एंड इट्स जस्ट नॉट योर राइटिंग, यू मीट डिफरेंट पीपल, यू talk to a lot of people, and then you realize some of them are good enough for you, some of them are just around you because they want to get their work done. You have to filter out people that you want to work with. So a lot of things, and then you're handling a business now.
So then you have to look after that too. So मस्ती तो नहीं है भाई, मतलब अगर ऐसे देख के आ रहे हो कि यार बहुत कूल है यार रैप करना, सब करे मैं भी कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। 1-2 साल की तो बात नहीं है, हम लोग तो 20-20 साल वाले खिलाड़ी है। 1-2 साल में अपना होने से रहा, मतलब मर जाएंगे लेकिन रैप करेंगे, माँ कसम, वैसा है। सो अगर वो पैशन और वो हंगर के साथ आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट मेक श्योर यू आर वर्किंग एवरी डे एंड यू डोंट टेक इट लाइटली कि आज यहाँ चिल किया, अरे मैं रैपर हूँ, फिर कल वहाँ पे चिल किया, अरे मैं रैपर हूँ। तो स्टूडियो से ज़्यादा बाहर दिख रहा है कि मैं रैपर हूँ, तो वो लोग नहीं मानेंगे। एट द एंड इट्स अबाउट द म्यूजिक यू मेक, एट द एंड इट्स अबाउट द लिसनर्स दैट आर लिसनिंग टू यू। सो जस्ट डू इट डेडिकेटेडली, नथिंग एल्स। Anything from your side? I would give the advice કે first ask yourself for real. એ બહેકાવામાં આજે કહ્યું કે કુલ લાગે એટલે બહેકાવામાં આવીને તમે અગર કરતા હો તો બહુ મુશ્કેલ છે અને તોય થઈ જાય. That's the beauty of industry today, boys and girls. થઈ જાય અને it's going to be even worse. તો મેં એવું સાંભળ્યું છે તમે બંને રેપ શીખવાડો પણ છો? Yeah, you used to. 2021 માં 6 મહિના જેવું શીખવાડ્યું. મને કંઈક શીખવાડી શકો આજે? Oh my god. થોડું ઘણું કંઈક. તમને અમે શું શીખવાડ્યું? મારો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે હું રેપ મારા પોતાના અવાજમાં નથી કરી શકતો. મારી અંદર પછી ઓટોમેટિકલી અમુક ફિલ્મ સ્ટાર્સના અવાજ આવી જાય છે. તો સપોઝ તમારે સુનિલ શેટ્ટીને કોઈ 2 લાઈનનો રેપ કરાવો હોય તો કેવી રીતે શીખવાડશો? No, that is also John. That's parody rap. That's people do that also. अगर लाइन आपकी तो ये धरती मेरी माँ है और धड़कन में सब बसा है। हाँ, हिप हॉप के लिए मैं जी रहा है। એ મને યાદ રહે એવી આપો યાર. धरती मेरी माँ है और हम सब इसके गवाह हैं। તો એને કેવી રીતે કરવાનું? सुने थे ના 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 થોડી આમ So સ્પેસ કંઈક તમારે મને there is a BPM, there is rhythm to it, and then there's poetry to it. तो ऐसा पोएट्री वाला मेरे को एग्जैक्ट बताओ तो मैं इसको कॉपी कर दूं. मतलब ये धरती मेरी माँ है वो कम ऑन, हम सब इसके गवाह हैं। लेट मी ट्राई. हिप हॉप धड़कन में बसा है। मेरा भाई माचा है। मेरा दूसरा भाई भी मचा है। ओके बाय बाय। ऑलराइट, क्या था ये? धरती मेरी माँ है, हम सब इसके गवाह हैं. यस, ओके. धरती मेरी माँ है। ये धरती मेरी माँ है, लेट्स गो, हम सब इसके गवाह हैं, 3 4 सब धड़कन में बसा है. लेट्स गो। आ गया ना? Yeah, perfect. Yeah. यार अभी ऋतिक रोशन को कुछ सिखाना हो तो कौन सी लाइन होगी? ये अंगूठा डाल दूं तेरे में। ये जीने के चांस है। इसको एडिट कर देना, बीप रख देना इस पे. કે ગાળ બોલી જ નહીં મેં, એટલે હવે તમે કંઈક બીપ કરશો તો બહુ ગંદુ લાગશે. अंगूठा तेरे में डाल. भाई जीने गए 4 दिन, 2 निकल गए इन क्रिश की शूटिंग, तीसरे में मिल गया जादू और हम कर रहे हैं क्रिस 4 की वेटिंग. अगेन यस 2 3 जीने गए एक मिनट, we'll do it Ritik style. I mean this जीने के 4 दिन, Yo, this fantastic amazing meals I'm having every day. Oh my god, I feel blessed. हमारा मिमिक्री आर्टिस्ट. क्या बात है. और किसकी करते हैं मिमिक्री आप? भाई नहीं भाई, this just Ritik. I tried. He is doing Ranveer doing Ritik. Yeah. रणवीर सिंह भी करते हैं. ना, he is doing Ranveer Singh doing जो ऋतिक कर रहे हैं. हाँ. अच्छा. Yeah. I saw him doing this somewhere. Yeah, I guess Karan coffee with. Truly friends odd somewhere. pod. पहली बार अभी करी उसने. Yeah. तो मेरे को लाइन दो यार ऋतिक की. जीने गए 4 दिन. जीने गए 4 दिन. हाँ, उसमें से 2 में कर रहे क्रिश की शूटिंग. 2 निकल गए क्रिश की शूटिंग. जीने गए 4 दिन, 2 निकल गए क्रिश की शूटिंग. हाँ. बाकी कर रहे हैं क्रिश 4 की वेटिंग. हाँ. All right. Can you start? Yeah. Oh, 2 3 4. जीने के हैं 4 दिन, Yeah. 2 निकल गए क्रिश 3 में Yes, shooting. और बाकी कर रहे हैं क्रिश 4 की वेटिंग. बाकी 4 की waiting. My God, that was just amazing, fantastic. That was just amazing. HRX, shout out HRX. Yes.
यार एक आदमी है जो बहुत स्लो बोलते हैं, अगर उनको रैप करवाना हो तो करवा पाओगे? हाँ हाँ, उस अपने पास स्लो वाले बीपीएम भी है। पंकज त्रिपाठी। ओह डैम, क्या मैं ही लिरिक्स निकालूंगी हर बार? मेरी तरफ क्या देख रहा है? ऐसी चीजें मेरे से क्यों करवा रहे हो? जल्दी रखे ना। हाँ अच्छा। पंकज त्रिपाठी सर को क्या कहेंगे? मुन्नी बदनाम हुई फेविकॉल से। मुन्नी बदनाम हुई फेविकॉल से। यो, और मुन्ना बदनाम हुआ, उसमें भी मेरा फॉल्ट है। मुन्नी बदनाम हुई फेविकॉल से। मुन्ना बदनाम हुआ, उसमें तेरा फॉल्ट है। डैम भाई, क्रेजी क्रेजी। नो शिट। कैन वी डू फरहान अख्तर? नक्की। कोई एक सरस एक लाइन आपो। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। वापिस आप वापस इधर आ कोरस इधर आ से, जाइए। कोरस से। और कोरस में भी आप इधर आ जाइए। ओके, बीट पे करें। ओके, 1 2 3 4, आप इधर आ जाइए, कोरस में भी आप इधर आ जाइए। वाह यार, दैट वाज ग्रेट। इसका मतलब मैंने इतना क्रिएटिव लिरिक्स कभी पापा ने भी नहीं लिखे। क्रेजी यार वो। ऑलराइट, एक हमारा फेवरेट एक्टर है जो करी है यार, संजय दत्त। બાબા बाबा સંજય દત્ત ગુજરાતીમાં કરી શકે? ट्राई करिए। 50 तोला। तुम्हारे घर पे ता घर दिवाળી નથી? तेरे घर दिवाળી नहीं है? तारा घरे दिवाળી નથી। हाँ, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन। तेरे घर दिवाળી नहीं है, काकरिया एक बिलाड़ी गई है। तेरे घर पे एक दिवाળી नहीं है, काकरिया एक काकरिया एक बिलाड़ी बिलाड़ी गई गई है। हाँ चलो, चलो, let's 1 2 3 4। तेरे घर पे दिवाली नहीं है, काकरिया एक बिलाड़ी गई है। ले तेरे घर पे दिवाली नहीं है। नहीं है, नहीं अरे है। धीरे करो ना, इतना नहीं पाता है मेरे को। पूरा वापस करो। तेरे घर पे दिवाली नहीं है, 2 3। तेरे घर पे दिवाली नहीं है, और काकरिया एक बिलाड़ी गई है। क्रेजी। बस यार हो गया मेरा। अरे मसाला है क्या? चलो यार। क्रेजी। ઓલરાઇટ ગાઈસ, સો ઇટ્સ ટાઈમ ફોર ધી ઓડ પોડ ગેમ. દર વખતે આપણા સેગમેન્ટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એક ઓડ ગેમ અમે રમાડતા હોઈએ છીએ. સો તમારો જે પ્રકારનો પર્સોના છે એ રીતે અમે ગેમ ડિઝાઇન કરી છે. સો ओके, तो अलग अलग जगह अलग अलग गेम है। यस, ओके, एक नंबर। सो AMD ऑन माय बैक, અમદાવાદ से आपको बहुत प्यार, ठीक है? તો અમદાવાદમાં છે ને ઘણી બધી કહેવતો બોલાતી હોય છે ओके અને સ્યાહી ગુજરાતી તો બહુ સરસ રીતે સમજે છે. Okay. બોલી એટલું નથી શકતા, પણ જોઈએ કેટલું ઊંડાણમાં સમજે છે આ બધી કહેવતોને. हैंडीकैप मैच है थोड़ा। हाँ સો અમુક કહેવતો હું કહીશ, એનો મતલબ શું થાય એ તમારે મને એક્સપ્લેન કરવાનો છે. Done. ના આવડે તો ખાલી એ રેન્ડમ ગેસ તો કરી જ દેજો. ऑलराइट ઓકે, ऑलराइट। પહેલી છે, જેવું વાવો તેવું લણો. तेऊ क्या? લણો, लड़ो। અણ मतलब जैसे आए वैसे ही चुपचाप निकल लो। નહીં. आई थिंक जैसी करनी वैसी भरनी। बेंगो, जैसी करनी वैसी भरनी. बराबर। ओके, दूसरा है पार की आशा सदा निराश. क्या अपना तो रैप से बचपन से नाता है, तो आशा लता सब कमजोर ही रह रहा है माँ कसम। पर दूर के डोल सुहावने ही मेरे को लग रहा है कि मतलब ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाला सीन ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये निकलता है कि तू कश्मीर का पॉडकास्ट देगा ना, तब मैं ऐसे वट में बैठूंगा। पॉडकास्ट पर हाँ भाई ऐसे भाई। बराबर हाँ। दूसरों पर भरोसा जब हम करते हैं तो हमेशा निराशा ही मिलती हमें है। बराबर मिलती है. ओके ओके, एक और करें. हाँ। नेक्स्ट इज एक सांता तेर टूटे. एक हाँ मेरे से ही है। एक मेरे को मालूम रहेगा ना। क्या? एक सांता तेर टूटे. एक संता था। तेर टूटे। एक बनता था। तेर टूटे। तेर टूटे. टूटे तो टूटा ही है ना। हाँ, अभी बाकी का तोड़ने का है, मतलब ब्रेक डाउन है बाकी का। और तेर तेर तेर। तेर हाँ, तेर, तेर। एक क्या? एक संतरा।
एक क्या? सांधे एक साथ सांधे સાંધ્યું सांध्યું क्या પરોવ્યું ને પછી સાંધ્યું स्टिचिंग की बात हो रही हाँ। है बराबर तो एक साथ ही सब कर लिया सब कुछ बोल रहे हो એક खींचा और और तेरा टूट गए हाँ बराबर पर तेरा क्या टूटे સાંધે सांधे पर सांधे क्या है मेटाफर हाँ मतलब डीपर एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक गाड़ी में एक जन बिठाया और वो प्रियदर्शन ऐसा चार बाहर निकल गए अच्छा ठीक है समझ रहे ना? हाँ समझा एक साध्या मैं तीर समझ टूट गया। एक तीर से दो निशान है। मतलब हैरान हो गए हम लोग बराबर। कि एक ठीक करने जा रहा है और इतनी यहाँ पे और लग रही है अच्छा ओके ठीक है यहाँ ठीक पे आग बुझा रहा है वहाँ पे और जल रही है है बराबर बराबर खत्म एक नहीं सांधे हो रहा है। तेर टूटे हाँ। बराबर नेक्स्ट उतावळे आंबा न पाके बराबर मतलब ये समझ आ गया एक मिनट हाँ मतलब जल्दबाजी में आम नहीं उगेगा आम नहीं पकेगा हाँ बराबर ये समझ आ गया हार डालो ने कुणाल भाई यार आड़ अभी ठेठ गुजराती दे रहे हो अभी मतलब न बोलियाમાં 9 ગુણ ना बोले तो ही बेहतर है વાહ બે સાગર ભાગવત क्या बूंद बूंद से सागर बनेगा ऐसा नहीं दो सागर भागवत बने भैंस आगर भागवत अच्छा भैंस के आगे बीन बजाना बराबर हाँ समझ गया मैं बे सागर लगा मेरे को तो लगा- હજુ એક આપું જેનો મને મતલબ નથી ખબર ओके આ આપણા ત્રણે માટે છે ओके ભેંસ વાગોળે અને છાસ છાગોળે અરે યાર આમાં અમને બહુ બોલતી હોય આવડે જે મને નથી ખબર આનો શું મતલબ હોઈ શકે કે પેલા કામ કરે ને આપણે એનો લાભ લઈએ છીએ માની લઈએ मान लिए લઈએ बराबर અચ્છા હા માની લઈએ મને નક્કી નહીં ખબર सांस भारी सांस लेके बोला तो फिर डीपर ही बोला होगा ऑलराइट दैट्स अबाउट इट सो मेरे ख्याल से 6 में से एटलीस्ट आपने 2 राइट आंसर दिए Not bad भाई, વધારે not આપ્યા bad. 3-4 આપ્યા ધીરે ધીરે તો આપણી હેલ્પ થી આપે અચ્છા બધા રાઈટ જ ऑलराइट नाउ इट्स योर टर्न ધનજી યસ સર એક સેકન્ડ હા સો તમારા ઘણા બધા વિડીયોઝમાં ડ્રાઇવિંગ હોય છે થલતેજ છે ઇવન તમારું ટેટુ છે એમાં પણ દૂરદર્શન ટાવર છે થલતેજનું મેન્શન છે એટલું આખું અમદાવાદ એની અંદર તમને દેખાય સો અમુક અમદાવાદના નામ જે છે એ સ્યાહી બોલશે અને તમે પહેર્યા હશે હેડફોન એટલે તમારે હેડફોનમાં મ્યુઝિક વાગતું હશે અને મીનવાઇલ તમારે ગેસ કરવાનું કે અમદાવાદના કયા એરિયાનું નામ આવ્યું કરીએ ડન બરાબર. હું મ્યુઝિક ટિક કરી શકું ना म्यूजिक हम बजाएंगे कैन वी हैव द हेडफोन्स प्लीज कैन वी स्टार्ट કઈ હમણાં તો ડન ડન લેટ્સ ગો तीन सब 3 अक्षर कुबेर नगर શું બોલ્યા कुबेर नगर રાયખડ नेक्स्ट नेक्स्ट એની પાસે છે नहीं नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट નેક્સ્ટ હા घाटलोडिया ચાંદલોડિયા ઘાટલોડિયા ઘાટલોડિયા ઘાટલોડિયા, જૂનું yeah. ગામ એ એટલું હેવી મેટલ ચાલી રહ્યું ને. नेक्स्ट आरटीओ आरटीओ આરતી કરી રહ્યો છું आरटीओ કરજે છે એકવાર आरटीओ આરતી કુળ आरटीओ આર્ટિકો पार्टियो એક મિનિટ એક મિનિટ ये तो बहुत इजी है भाई आरटीओ આજુબાજુ શું છે અચ્છા આરટીઓ आरटीओ आरटीओ भाई माँ कसम આવરો ડમસીરાજ નો અમારો લેજેન્ડ ओके नेक्स्ट दानी लिमड़ा જીવરાજ પાલ दानी लिमड़ा હા હા અમને ડીએસ ભાઈ દાણી Yes, represent. घी काटा घी काटा आखिरी का शब्द क्या है ईटा नगर घी काटा फूल घी काटा आम कहीं बोले आम घी काटा ईटा माँ कसम आवड़ नहीं आवड़ कोई ऐसा कुछ एक्शन वैक्शन बॉटल ओपनर बाटली अरे उंगली टेढ़ी करके घी निकलता है क्या एक्सप्लेन किया है भाई वो मुझे भी समझ नहीं आया घी काटा
इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता भाई मैं. इयाटा ऐसा कुछ बोल रहा है. इयाटा क्या लोड है? ओ घी का काटा मूल कैसे समझाऊंगा मैं. गुना गोल्ड. हाँ आखिरी है, लास्ट, नेक्स्ट. लास्ट थलतेज. અમદાવાદ. क्या बात है, क्या बात है. સો આપણા જે ફેન્સ, આપણા એટલે તમારા બંનેના જે ફેન્સ છે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે વિડીયો, એમની વચ્ચે યાર વાતો બધી બહુ થઈ ગઈ, મજા પણ આવી, पर कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो कब से बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, तो आज ऑडपॉड पे क्या परफॉर्म करेंगे आप? Okay, so this is our most recent collab called Tata Indica from my recent album called Sultanat. Tata Mixtape. Indica? Tata Indica, yes. ये સલ્તનત क्या है? सल्तनत मेरा मिक्स टेप है जो मैं पिछले 2 महीने से रिलीज करके बैठा हूँ. 29 अक्टूबर रिलीज हुआ था. 11 गानों का टेप है. धनजी भाई का फीचर है टाटा इंडिका पे. आप जाके स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, और एप्पल म्यूजिक पे भी सुन सकते हो, और अपने घर में औरों को भी सुना सकते हो. और एक दो लफ्ज अपने वीडियो के बारे में. वीडियो के बारे में ऐसा है कि अगर तुम्हें 4424 पसंद आया ना, तो तुम्हें टाटा इंडिका भी डेफिनेटली पसंद आएगा. सबसे ज़्यादा मेरी और धनजी की केमिस्ट्री पसंद आएगी. और बस बहुत अच्छा गाना है. दिस इज डायरेक्टेड बाय मी एंड बिप्टिया. तो मेरा पहला थोड़ा बहुत डायरेक्शन में भी थोड़ा डेब्यू होने जा रहा है. वाह. और कुछ क्रेजी प्रोडक्ट निकालने का ट्राई किया स्वतंत्र प्रोडक्शंस के साथ. और या टाटा इंडिका इट इज. लेट्स हियर इट. यस सर. शाउट आउट आचार्य. लेट्स गो. अहमदाबाद. यस सर. तुम सुन नाम सुन चुके चुके नहीं चोंच ले जो ची 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 करते कुप्पो सी रखे सके चेक भर के रखे तू रू रू मत अपन उकेल उसके टाटा में इंडिका सुबह सुबह मैं तो गली अपनी बैचो कैसे भी होगी या मैं एक स्टूडियो पहुंचा अंदर जाकर दाखिली होगी या दिनचर्या ढिंचैक होगी या पुराने साकर तोड़ के भाग में फक जैसा मेरे को आसानी से दिख जाता I catch a flight out of Ahmedabad. धनजी आकर से आई वो स्कूटी और अब हम दोनों टोर पे घूरे पूरा देश साथ जब ये सब आसान नहीं है. स्कूटी फेमस करके बेची धनजी आसमान चाहिए. बुखार में लिख रहा 16 बार तो हीट लाजमी है. जिंदगी जुआ मुझसे चिप्स मांग रही है. पहना स्टूडियो पहना डिजाइनर पर भेदभाव नहीं है. सजे ऑडी खबे मर्क मारे बनने कार જોઈએ. पास थोड़े बैरिकेड का बेशुमार चाहिए. राती गेम पुकारे तभी शो पे देर लग रही है. लोग बोले तुझ में टैलेंट जाकर बंबई काट टिकट. खेचे मोटा पैसा और अब चाहिए मुझको 8 फिगर्स. बुक समझ साइफर में था 1 माइक और 8 स्पीकर्स. अब लेबल प्रोजेक्ट चाहते हम संभल के रखते शार्क्स निकट हमने विंस केस लोकेस कभी एल नहीं दिखाए रखे. इमोशन सप्रेस तुझे टेल्स ही सुनना है. प्रमोटर्स के साथ डकैती हम पेटी उठा लाए. महंगी खुराक बोन अपेटी बेटर रैपर्स बोनाफाइड या फिर डूबा जाए अपन निकाल के कुछ छुपाए बापू काइनो घटे भाई से आई भाव बोले साई भाव इन सबको लेके साइड डाउन में साइड डाउन का सोसा के लाके कोने पाई जाओ. एक वक्त था कोई भी नहीं पूछे जिंदा है कि मर गए. अब रोज रात डिनर पूछे झिंगा है कि मर गए. हाँ एक कांदा है साड़ा काट के लाइक प्लेट में तू मत सुन हम सुन चुके चुके नहीं सोच ले जो ची 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 करते कुप्पो सी रखे सब कुछ चेक भर के रखे. तू रूक रूक मत अपन निकाल दे कुछ उकेल लब निकाल दे कुछ उकेल लब निकाल दे कुछ उकेल तू रूक रूक मत अपन निकाल दे कुछ उकेल अब निकाल दे कुछ उकेल अब निकाल दे कुछ उकेल अब निकाल दे कुछ उकेल. Let's go. Wow, Let's man, go. wow. You guys are exceptional talent. ખૂબ જ અઘરું છે આ કરવું, અને એટલું ઇઝીલી તમે કરો છો. આઈ એમ શ્યોર આની પાસે ખૂબ જ મહેનત હશે. આજે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો કે આપ બંને ઓડપોડમાં આવ્યા, કેમ કે 2017થી જે તમારી શરૂઆત થઈ છે, 2026માં આપ ક્યાં પહોંચ્યા છો, એટલે અમને ડેફિનેટલી આશા હતી કે 27માં ઇન્ટરનેશનલ અમારું બજેટ નથી કે અમે લોકો વિદેશ કન્ટ્રીમાં તમારું ઓડપોડ કરવા આવીએ. અત્યારે અહીંયા છો તો એનો લાભ લઈ લઈએ. બટ ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ યુ ગાઈઝ. Thank you so much. The feelings are mutual. this one is really Yes. special one. Yes. તમે પણ આટલા ટાઈમથી જ અમદાવાદમાં કલ્ચર માટે કામ કરી રહ્યા છો. Yes. તમારો અવાજ જે ખૂણે ખૂણે સંભળાય છે, it means a lot. Yes. Thank you. Yes. Glad to know that. Thank you guys. Thank you so much for being here. Thank you so much.